تھے ایسی کون سی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ جس کے لیے ان کو روکا گیا. کیونکہ میں بھی میرے پاس بھی یہ بروشر ہے جو کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں گا. میرے پاس بھی میں نے 3 سال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پنجاب میں آفس کیا جبکہ فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ بھی نہیں تھی. تو بڑی مشکلات کا وہ دور تھا. تو ہم نے تو ڈیلیور کیا, کوشش کی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے جب تنقید کی ہے اتنی کہ ان کو کام نہیں کیا جانے دیا جا رہا تھا. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کون سا کوئی ایک ایسا کیس کوئی بتائیں کسی اوورسیز پاکستانی کا کہ جس کیس کے اوپر ان کو میرٹ کے اوپر جو کہ ان کو روکا گیا یا ان کا راستہ روکا گیا. تو وہ میں بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کو یہ آپ کے تھرو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی 18 ماہ میں انہوں نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کی باتیں کی ہیں اور میں نے بھی 3 سال ان مشکل حالات میں اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کے لیے دفتر کیا ہے. اگر وہ میرے ساتھ آپ کے سامنے کسی بھی جگہ میں آنے کو تیار ہوں, مناظرہ کریں اگر اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے, تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اگر وہ آ کے تو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اوورسیز کمیونٹی کو اتنا بیوقوف نہ سمجھیں. ہمارے ادھر بڑا ٹیلنٹ ہے اللہ کی مہربانی سے. ہمارے ادھر پارلیمنٹیرین ہیں اوورسیز برٹش پاکستانی, لارڈ ہیں, ڈاکٹر ہیں, بیرسٹر ہیں, بڑے بہت بڑے بزنس مین ہیں. آپ ماشاء اللہ آپ جیسے صحافی ادھر موجود ہے, عوام میں شعور ہے. تو اب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آگے کہے کہ میں آپ کے لیے کرنا چاہتا تھا. جب اس سیٹ پہ بیٹھے تھے تو اس وقت نہ ہی انہوں نے ڈیول نیشنلٹی کے ایشو کے اوپر سے اوورسیز پاکستانیوں کو جب مین جو ان کی حق تلفی ہوئی تھی کہ ہمیں دیکھیں ادھر برطانیہ جیسے ملک میں رہ کے ہمیں ڈیول نیشنلٹی کی کوئی اپنا تانا کنڈیشن نہیں ہے, تو ہم ادھر پارلیمنٹیرین اپنا پارلیمنٹ میں الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن اپنے وطن عزیز میں ہمارے ساتھ ایسی اپنا زیادتی ہوئی تو اس کے لیے اگر وہ آواز اٹھاتے یا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے رائٹس کے لیے ان چیزوں پہ وہ استعفیٰ دیتے, حکومت سے اپنا ناراضگی کا اظہار کرتے, تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ انہوں نے اب آپ کے سامنے کہ انہوں نے برطانیہ سے جیسے سزا یافتہ کرمنلز کو جا کے ادھر اپنے ارد گرد جگہ دی اپنا گورنر ہاؤس میں. تو یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. ان کے ارد گرد جو ان کے ایڈوائزر تھے, جو انہوں نے ٹیمیں بنائی, یہ ان ٹیموں سے مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ ادھر کام کرنا چاہ رہے تھے گورنر ہاؤس میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ وہ ذاتی کو پراپرٹی اگر کام کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر وہ ذاتی کو اس طرح کے کوئی کام کرنے چاہ رہے تھے تو وہ لازمی بات ہے جو میرٹ سے ہٹ کے اگر بات کرو گے آپ تو آپ کا خود کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا, تو اس کام میں تو رکاوٹ آئے گی. آج پاکستان میں میڈیا کا دور ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنر اگر کسی میرٹ کے اوپر کسی کام کو ہاتھ ڈالے تو اس کی راہ میں رکاوٹ آئے تو وہ منظر عام پہ آنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حکومتی ٹائم میں جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں, گورنر صاحب نے جو کہ اپنا لندن پلان بنا ہے پاکستان کے خلاف, جو مین جو بات ہے کہ لندن پلان جو بنا جس میں چودھری شجاعت, طاہر القادری, یہ سارے عمران خان, یہ ساری میرا مطلب ہے جو کسی بیرونی ایجنڈے کو اوپر جو اپنا ادھر کا جو پلان ہے وہ جس کے تھرو پاکستان میں وہ جو دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا اس پلان کا بھی یہ حصہ تھے. تو ایسے ہی کسی پہ الزام نہیں لگتے. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اب وہ ادھر آ گئے ہیں, اب وہ گورنر نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں گے اور بھی کئی چہرے سامنے آئیں گے جو کہ اس کے کردار تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف یہ غلامی سازش کی تھی. یہ منظر عام پہ آئے گا. اور میں دوسری بات آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2.5 ماہ پہلے کی بات ہے, گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک میٹنگ کی. یہ ان کی گورنری کے دوران میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے برطانیہ سے بھی ہمارے بھی ایک عہدیدار اس میں بیٹھے تھے اس میٹنگ میں. اس میں اٹلی کے عہدیدار بھی بیٹھے تھے, اس میں اسپین کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے تھے.
میں یہ چیزیں اگر گورنر صاحب میرے سامنے میرے ساتھ اگر مناظرہ کریں تو یہ میں میرے پاس ان چیزوں کے پروف بھی ہیں. انہوں نے ایک علیحدہ حکومت کے خلاف پارٹی بنانے کا اس میں ڈیسائیڈ کیا اور سر عام وہ بیٹھ کے حکومتی جو ہمارے لیڈران ہیں حکومت کے اوپر تنقید اور نازیبا الفاظ یعنی کہ بغاوت کا ایک ماحول انہوں نے پیدا کیا. ایسی وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے جو پرسنل جو میٹنگز ہوتی تھی ہم بھی جاتے تھے ادھر تو ہمارے ساتھ بھی وہ جس طرح کی گفتگو کرتے تھے بہت ساری چیزوں کے پروف موجود ہیں. تو یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور جو ان کو عزت دینے والے تھے جن کے تھرو ان کو عزت ملی اسی حکومت کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں اور گورنر ہاؤس کو حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا اپنا وہ آماج کا بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر ادھر ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات تو آنے تھے سامنے. تو میں یہی چیزیں میں آج آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے میں نے بلایا تھا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی گورنمنٹ پہ انہوں نے کیا تو میں نہیں سمجھتا چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اتنی بیماری کے باوجود 18-20 گھنٹے وہ جس طرح سے اپنے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں اپنی زندگی کی اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر وہ جس طرح سے اپنے صوبے میں خدمت انجام دے رہے ہیں تو ایسے اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے بیوروکریسی اس کے اوپر اس طرح کی تنقیدیں کرنی اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بھی دیکھیں اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے دہشت گردی اور دوسرے بہت سارے مسائل ہیں تو ان حالات میں ان کو پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. تو ہمیں آج بھی انشاءاللہ جو مشکلات ہیں ان کا حل کیا جا سکتا ہے ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ اپنا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ میرے قائد کی محبت تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں ان کی پرابلمز کو اپنی پرابلم سمجھتے ہیں اسی لیے انہیں ہمارے درمیان میں سے گورنر لے جا کے انہوں نے بڑے صوبے کا گورنر بنایا اور اس کے بعد پنجاب کے حد تک انہوں نے ایک اوورسیز کمیشن بھی مقرر کیا ہے جو کہ میرا اپنا کام جس نے شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فیڈرل تک اس سلسلے کو بڑھایا جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو پرائرٹی کے اوپر اپنا ان کو ترجیح دی جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حل کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ کار اپنایا جائے گا اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں بھرپور اپنا حکومت اپنا کردار ادا کرے گی. شکریہ. ایک تو میں دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ زبیر گل جیسا وفادار پارٹی کارکن جو ہے وہ ہر پارٹی کو ملے. آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ آپ کی ٹاسک فورس کے چیئرمین تھے پچھلے دنوں عبدال بھٹی صاحب نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا کہ وہ پرفارمنس نہیں دے سکی جو ٹاسک فورس تھی. یہ آن ریکارڈ ہے. آپ سب سے دوستی بہت زیادہ ہے میری. میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. دوستی زیادہ ہے میں پارٹی کرتی رہتی ہے. آپ کے ساتھ 3 سال میں کیا ہوا؟ آپ وہاں پہ کیا پرفارمنس دے سکے؟ آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا آیا؟ اور ابھی بھی دیکھیں کہ جب 2 سال ہو گئے اس بات کے لیے 2 سال ہو گئے اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کی اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ پورا علاج تھا. اس زمانے میں اگر یہ لوگ چاہتے تو یہ جو اوورسیز کے ووٹ کا مسئلہ اور نیشنلٹی کا حل کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی تھی مل کے ساتھ. ایک تو انہوں نے 7 سال میں وہ کام نہیں کیا. دوسرا 2 سال ہو گئے ہیں. اوورسیز کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کالنگ کارڈ کا مسئلہ تھا وہ پہلے رحمان ملک اور زرداری پہ کہنا آتا تھا کہ جی وہ کمیشن لیتے ہیں بیچ میں سے. 2 سال ہو گئے ہیں. پاکستانیوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے کالنگ کارڈ کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کو. یہ بھی حل نہیں ہو سکتا. اور لینڈ مافیا اس دن ملک ریاض نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ہے کہ لینڈ مافیا بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس میں سارے بڑے لوگ انوالو ہیں. پولیس آفیسرز بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ تو ایسی جینون بات ہے جس کا سامنا ہمیں آپ کو ان سب لوگوں کو ہے لیکن اس کا کوئی پراپر سد باب نہیں نکل رہا. اندر کی باتیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت سے حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ لینڈ مافیا میں انوالو ہیں
इन 2-3 बातों को आप करना चाहते हैं? बड़ी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने जो दुआ की है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ। मुझे यही फ़ख्र है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ काम कर रहा हूँ। उनका मैं पार्टी का इधर बरतानिया में प्रेसिडेंट हूँ। मेरे लिए यही बड़ी इज्जत की बात है। तो मेरा ज़मीर मुतमईन है। तो मैंने जो अपना काम किया है सदीकी साहब ओवरसीज़ ऑफिस के हवाले से आपने जो बात की है, तो वो आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो बगैर तनख्वाह के वो मैंने काम किया, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ख्याल है इधर जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं तकरीबन इन्होंने भी मुझे कोई ना कोई केस उधर भेजे हैं और मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन केसों को हल करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं ऐसी पोजीशन में नहीं था कि सभी केसेस को मैं हल कर सकूं, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की है। और रही लैंड माफिया की बात, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि लैंड माफिया के लोग बड़े ताकतवर हैं। पाकिस्तान में अगर कहीं बैरियर है, कहीं प्रॉब्लम है, तो वो उधर अदालती जो निज़ाम है वो ख़राब है। वो जो सिविल अदालतें हैं, जो दीवानी अदालतें जिनको आप कहते हैं लैंड माफिया के मुतल्लिका जो डील करती हैं, उनमें खराबी है। वो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब जब हमने फर्स्ट टाइम उनको प्राइम मिनिस्टर होने के बाद अपना मुलाकात की, तो उसमें हमने उनके सामने यही बात रखी कि अपना पंजाब जो इंडिया का उसका हवाला दिया। उधर एक ओवरसीज़ इंडियंस के लिए एक खुसूसी अदालत मौजूद है जो कि 3 तारीखों के ऊपर इंसाफ मुहैया करती है। हमने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कोई ऐसी खुसूसी अदालत का क़याम कर दें जो कि फास्ट ट्रैक पे इंसाफ मुहैया करे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लैंड माफिया के लोगों की कोई क्रिमिनल्स की कोई भी दुनिया में कहीं भी जगह नहीं होती। थोड़ी देर ज़रूर होती है, अंधेर नहीं होती। उनकी जगह जहाँ पे है वहीं होती है। तो इसीलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। इन मसाइल का हल हो सकता है, निकल सकता है, पर इसका ये मतलब है कि लैंड माफिया के लोग अगर वो ताकतवर हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम इस वजह से उधर से भाग आए डर के, या कोई ये कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह तो मैंने बहुत बड़े केसेस को हाथ डाला है। ये मेरी अपना ये सीधी समझ रही है, मेरी थोड़ी सी जो कोशिश थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। ये एक ब्रोशर है जो कि रिकॉर्ड के ऊपर है। इसको ये नहीं कि मैंने वैसे ही प्रिंट कर दिया। जिन लोगों के मेरे पास केसेस हैं उनके नाम, उनके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, उनके पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप उनसे पता भी कर सकते हैं। और उस ऑफिस में मेरा ख्याल है कि इधर काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने उस ऑफिस का विज़िट भी किया था। तो हमने तो कोशिश की थी उसको, लेकिन उसको कंटिन्यू, आज आपने बात छेड़ी है तो उसको कंटिन्यू होना था उस ऑफिस को, लेकिन वो भी एक साजिश के तहत उसका भी रास्ता रोका गया। जब गवर्नर पंजाब जो साबका गवर्नर पंजाब है, इन्होंने ऐसे एक कमीशन का जो अपना गवर्नर बनने के बाद एक प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब को कायल किया उसके ऊपर कि कमीशन बनता है सारा को। उन्होंने कहा ठीक है आप मुझे प्रपोजल बना के दे। जैसा भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नर बनने के बाद इन्होंने सोचा कि ज़ुबैर गुल ने पहले भी ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए काम किया है और इधर बरतानिया में प्रेसिडेंट भी वो पार्टी का, तमाम सिटीज़ में मेरी अपना ब्रांचेज भी मुसलमान नून की मौजूद हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं गवर्नर बन के जब आऊँ तो मेरी शायद कोई पावर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी अगर ज़ुबैर गुल को मैंने मैनेज होने दिया। तो उन्होंने उस प्रपोजल में एक ऐसी शिक रख दी कि एक सोलिसिटर LLB का कंडीशन रख दी उन्होंने जो उस कमीशन को बनाने के लिए। लेकिन मैं LLB तो नहीं था, तो मैं लाजमी बात है कि उस कमीशन से मैं बाहर हो गया। तो मेरी वैसे सोच भी नहीं थी। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे पूछा था इस बात का, इलेक्शन जब जीता है तो उसके बाद उन्होंने मुझे उस ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए पूछा था। पर मैंने उनके कहा कि मैं कहा मियाँ साहब, हम जब पंजाब गवर्नमेंट थी हमारी तो हम आपसे यही अपना बात करते थे
कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला जो है ये खाली पंजाब नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान है, आज़ाद कश्मीर तक। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऑफिस फेडरल में बने जो कि तमाम सूबों को रिलीफ मिल सके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों। क्रिमिनल्स का भी नाम लिया गवर्नर हाउस में, कोई नाम बताएंगे किसी तरह? सर ये वक्त आने पे इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। जुबैर गुल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। शौकत साहब प्लीज मुझे इजाज़त दे दें। आप बताएं कि जो बार जो ये चौधरी सरवर साहब एक जिक्र करते हैं कि लैंड माफिया के पीछे बहुत बड़ा ताकतवर लोग हैं, तो क्या वो टारगेट कर रहे हैं जो हमारे हाई लीडरशिप है जैसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं या वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं? और दूसरा ये है कि जो आपने अभी बात की है तो जो उनका रिज़ाइन क्या एक साजिश, बड़ी साजिश का हिस्सा है कि पहले से वो साजिश डेवलप कर रहे थे, उनके किसी और पार्टी के साथ तल्लुकात थे, आप ये कह रहे थे? शौकत साहब, अगर चीफ मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब लैंड माफिया को अपना सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपका ये खादम आपका सबसे बड़ा लैंड माफिया का सरगना होता पाकिस्तान के अंदर। किसे पैसा पसंद नहीं, किसे नहीं चाहिए कि आने वाली नस्लों के लिए अपनी जायदादें बनाएं या जो भी। मेरे जैसा कारकुन उधर अपने घर को बेच के तो बगैर तनख्वाह के काम करके ना आता, मेरे भी उधर प्लाट होते, मैं भी इस पावर को मिस यूज़ करता कि मेरे कायदीन सपोर्ट करते हैं इसको। ये बातें कहने से तनकीद किसी पे करने से, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, इसका अच्छा तभी लगेगा कि मैंने भी ओवरसीज, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी ओवरसीज़ के लिए वर्क किया है, मुझे भी पता है कहाँ बैरियर थे, कहाँ मेरा मतलब काम हो सकता था। तो अगर गवर्नर साहब साथ बैठ के आपके सामने हम आपकी अदालत में हम हाजिर हो जाएं, तो जो फिर आप जो बैठ के जो रिजल्ट निकालेंगे विद प्रूफ हम बातें करेंगे तो आपके सामने जुबैर गुल साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुजाहिद भाई प्लीज, मैं बड़ी आप कोई इसमें शक नहीं है। नसीम भाई ने भी कहा, सब कहते हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, यहाँ पर बरतानिया में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा सोचते हैं, मगर अगर सवालात को अगर आप ले लें सीधा तौर पर, तो वो ये है कि ठीक है, वो ये है कि मैं पहले एक सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दीगर जो सवाल हैं उनको कंटिन्यू कर लूँगा। गवर्नर साहब तो जहाँ तक हमने सुना है, गवर्नर साहब ने तो किसी किस्म की ऐसी कोई तल्ख बात लीडरान के लिए नहीं की। गवर्नर साहब ने तो अपनी कारकर्दगी जो है उस पर रोशनी डाली, जिस तरह कि आपने अभी चैलेंज किया है कि रोशनी जो उन्होंने कारकर्दगी, उन्होंने GSP+ जो है उसका उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे बड़ा कारनामा था। और अगर आप अभी ये जो CV लेके आए, जिस तरह गवर्नर साहब ने वेबसाइट पे अपनी पूरी कारकर्दगी जो है पूरी दुनिया के लिए दिखाई है, तो आप ये जो CV आई है इसके अंदर से थोड़ा सा प्लीज़ रोशनी डाल दें कि क्या कुछ आपने किया है, क्योंकि एक दो केसेस पे रोशनी डाल दें। और GSP+ जो है वो गवर्नर साहब का सबसे बड़ी अचीवमेंट है। GSP+ जो है उसमें आप मुझे बताएं गवर्नर साहब की क्या काबिज थी। वो सजाद करीम जैसे लोगों का आप जिक्र करें तो वो मुझे समझ में आता है। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने भी इधर बैठ के मैंने भी कोई लेटर लिख दिया था, तो मेरी भी काबिज थी, ये बात नहीं। आप इधर से बैठ कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट को भी लेटर लिखेंगे तो आपको जवाब तो आ जाएगा। वो काबिज नहीं होती, वो जो हकीकी जिनकी काबिज थी वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। गवर्नर साहब ने उधर अपना कोई अपनी वेबसाइट पे कोई चीज़ें ऐसी कोई CV बनाई है, तो उसका मैं नहीं कहता था। मेरे ये ब्रोशर जो है ये इसको आप देख सकते हैं, ये जो मैंने जितने केसेस मैंने हल किए हैं, जो हल हो गए हैं और जो नहीं हो सके उनका भी जिक्र है। और रही बात तनकीद की, मैं तनकीद उनके ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि वो ओवरसीज़ कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा कुछ ओवरसीज़ के लिए करना चाह रहे थे, मैं भी उन्हीं से यही तनकीद में पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सा ऐसा केस था, कौन सा ऐसा लैंड माफिया किसी एक बंदे का नाम नहीं है। हर सिटी में, हर मोहल्ले में किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिसको वो मंजर आम पर लाएं और मेरे साथ बैठ के मुझे बताएं कि वो कौन सा केस था ऐसा जिसके ऊपर उनको लैंड माफिया के लोग उनके ऊपर हावी हो गए। तो वो केस उनसे नहीं हो सका। मैं भी आपके सामने यही बात कर रहा हूँ कि तमाम केसेस जो हैं वो मैं भी हल नहीं कर सका, लेकिन कोशिश जो की है वो कोशिश आपको नज़र आई है। तमाम ये इधर मुर्तज़ा शाह साहब भी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक मुझे मर्डर का केस दिया जो कि उनके स्कॉटलैंड से था। उस वक्त वो गवर्नर नहीं थे, तो मैं उनका वो जो अपना फैमिली को मैं मिलने गया जिनका मर्डर हुआ है, बाप मर्डर हुआ है। तो मैंने मेरे साथ बैरिस्टर आबद साहब थे, मैं ग्लासगो में गया, मैंने गवर्नर साहब को भी बुला लिया, उस वक्त वो गवर्नर नहीं थे।
तो मैंने उनको भी बुला लिया। मैंने कहा जी आप स्कॉटलैंड के लोग हैं, तो आपके उधर ही फैसलाबाद की तरफ आपके इलाके में इनका मर्डर हुआ है, तो बड़ी ज़्यादा ब्रिटिश इनके वालिद साहब से, तो इनका ज़रा केस सुना। तो केस सुनने के बाद ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, वो लोग फैमिली मौजूद है। केस सुनने के बाद मुझे गवर्नर साहब ने जो बात कही ना, मैंने कहा गवर्नर साहब इसमें क्या हेल्प हो सकती है। उसमें मेरे पास ओवरसीज का ऑफिस था गवर्नर साहब के पास कोई, लेकिन मियाँ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे। वो अगर उनके लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहते तो वो मेरे से ज़्यादा उनकी आवाज़ पहुँच सकती थी। तो मुझे बाद में इन्होंने मशवरा दिया, गुस्सा वो जैलदार हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, तो वो उनको हाथ नहीं पड़ सकता, इनका कुछ भी नहीं बनना। तो ये साहब ये बात मैंने सुनने के बाद मैंने अगले दिन ही अपने ऑफिस से जो वर्क शुरू किया, वो गैंगस्टरों को उठा के अंदर फेंका। फिर वो फैमिली मेरे पास आई जी अंदर, ये मुर्तज़ा शाह साहब सामने बैठे। फिर वो फैमिली आई मेरे पास, मुर्तज़ा शाह साहब को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ जाती मुलज़म तो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन अंदर उनको VIP सर्विस हो रही है, तो वो अंदर से भी बदमाशी कर रहे हैं। तो मैंने शाह साहब को पता है, उनको निकलवा के हवाला से उनको जूते मरवाए और उनके साथ इतनी सख्ती की, आज वो जेलों में बंद है। उनकी जहाँ पे जगह थी वहीं पे बंद है। अगर मैं गवर्नर साहब की बात मान लेता तो वो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, ये हाल नहीं है। क्रिमिनल्स की कोई औकात नहीं, चाहे वो लैंड माफिया हो, किसी भी तरह का क्रिमिनल हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप अगर कानून को मेरिट के ऊपर इस्तेमाल करें, अगर मेरिट के ऊपर आप चल रहे हो, तो आपका खुद का ज़मीर मुतमईन है, आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। मेरी भी बहुत सारे लोगों के साथ इस बात पे दुश्मनियाँ पड़ी हैं। जो भी इधर आपको पता है, इधर गुजरात से जो बेल्ट शुरू होती है पटवार बेल्ट, उनकी बड़ी बरादरी इधर मौजूद है। विक्टिम के भी जो अपना बरादरी इधर मौजूद होती है, मुल्ज़म जो पार्टी होती है उसकी भी बरादरी मौजूद होती है। आप ऊपर ये रिटर्न बातें आती हैं, लेकिन आप अगर किसी को आपका अगर ज़मीर मुतमईन आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं तो अपनी जान की परवाह किए बगैर कर सकते हैं। आप हुकूमत का और लैंड माफिया क्रिमिनल्स का कोई अपना इनकी कोई कंपेयर तो नहीं कर सकते इनको आपस में, उनकी कोई अपना जगह नहीं। लेकिन ये है कि जिन सीटों के ऊपर अगर आप टीम ऐसी हो कि जो कुछ करना चाह रही हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमें भी जहाँ पे रुकावटें आती थी, हमने भी बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर DIG लेवल के जो अजहर जावेद साहब ने वो केस दिया था, वो भी बैठे हुए माशाल्लाह, तो DIG उसमें इन्वॉल्व था। तो इनको पूछे 24 आवर में वो DIG अपना मुअत्तल हुआ, तो आज तक वो जॉब पे नहीं लगा। CM साहब ने इधर पिछली अपनी हुकूमत में इधर अपनी जो वो खिताब करते रहे उसमें भी उसका जिक्र करते रहे। फिर एक रायविन में सोसाइटी थी, काशिफ मालिक है उसका, उसमें ARY भी उस वक्त सलमान इकबाल साहब भी उसमें पार्टनर थे, तो वो भी मेरे ऑफिस में आए। उस जगह पे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। वो काशिफ जो इन्वेस्टर है जिसने अरबों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो पाकिस्तान से भाग आया था, अपना नाम बदल के असद के नाम से वो वापस भाग आया था, तो वो अपनी जगह पे वापस ही नहीं जा सकता था। अजहर जावेद साहब साथ थे, हम उनको साथ उधर लेके गए उनकी सोसाइटी पे, उनका दोबारा काम शुरू करवाया। CM साहब को बोल के वो उधर से लैंड माफिया के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला, और उसमें मुस्लिम लीग नून का भी एक सीनियर रहनुमा उसमें इन्वॉल्व था। मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके 7 क्लब चीफ मिनिस्टर हाउस में एंट्री बैन कर दी थी। तो जब कुछ करना चाहो तो काम रास्ता भी अल्लाह ताला बनाता है, अगर करना चाहो तो। ये तो कोई बात नहीं कि अगर मुश्किलात हैं तो वो आप लाजमी बात है, आप भी अगर पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं अगर, तो आपको भी पता है कि वो उधर मुश्किलात हैं, लेकिन उनका हल भी तो मौजूद है ना। लोग उधर रह रहे हैं, दुनिया रह रही है, तो ऐसी भी कोई बात जी। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नर का होता है एक सेरेमोनियल होता है, उसके पास पावर्स नहीं होती और कोई मैंडेट भी नहीं होता। सारा मैंडेट आवाम ने चीफ मिनिस्टर को दिया होता है, और अगर कोई काम करने हैं, किसी के मसाइल हल करने हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर करता है। और आपने भी कहा कि उनका ये मैंडेट नहीं था, तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल हल करने के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया? और वो कौन सी ऐसी खिदमत थी जिसकी बिना पे आपने बहुत सारे अपने पार्टी के लोगों को पीछे करके चौधरी सरवर को गवर्नर पीपल्स पार्टी
मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ओवरसीज का काम करने के लिए भेजा गया, ये सरवर साहब खुद ही कह रहे हैं पहले दिन से। मैं वही कह रहा हूँ कि ओवरसीज कम्युनिटी को मेरा सवाल यह है कि उनको फिर क्यों बनाया गया, उसकी क्या खिदमत? जबकि उनका तल्लक पार्टी से था, जिससे भी तल्लक था, लेकिन आखिरी कुछ तो उनकी ऐसी काविशें होंगी कि जो कि मेरे कायदीन ने उनको ऊपर एतमाद किया, उनको इस वजह से नहीं कि वो नून के साथ उनका तल्लक था, लेकिन उन्होंने एग्जाइल के टाइम पे जो मेरे इल्म में जो आया है, तो उन्होंने उस वक्त जब टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मेरे लीडरान के लिए जो कोशिश की, तो वो शायद हो सकता है कि वो भी, और उसके बाद इलेक्शन में भी, जब इलेक्शन से पहले भी 1 साल पहले जाके वो पाकिस्तान में बैठे हैं, टिकटों की तकसीम का भी जो मामला था उसमें भी उन्होंने जाके हेल्प की, तो उसके बदले में उन्होंने अगर उनको गवर्नर बनाया, तो इसमें मेरे कायदीन की तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी तो नीयत आपके सामने है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो अहमियत तो देते हैं, तो इसीलिए उनको इतने बड़े मनसब पर बैठाया गया। आपने अभी जिस केस का हवाला दिया उसका परेड चौधरी सरवर साहब ने अभी तकरीर में आज किया है कि वो केस उनकी वजह से हल हुआ, और वो जो मुलजमान हैं उनको 25-25 साल की कैद की सज़ा उन्होंने दिलवाई है उनकी कोशिशों से। मर्डर केस जो अल्लाह का शुक्र है मुर्तज़ा शाह साहब जिंदा है। यहाँ से करके भागे हुए थे। अच्छा, वो दूसरा केस है। पिछले दिनों जब ये आपका एक तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि जहाँ से एक शख्स को बुलाया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है और उसको पावरलेस बना के उससे खुद उनका कहना ये है, मेरी उनसे बात हुई उसमें ये है कि मेरे बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनको तो मैंने आगे रेफ़र किया, लेकिन वो आगे रेफ़र होने के बाद नहीं हुए और उनका कोई काम नहीं हुआ, तो मैंने अपने आप को पावरलेस समझा, हेल्पलेस समझा, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल मेरा ये होता है कि पिछले दिनों परसों की बात है जब फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब ने ये कहा है कि वो बहुत सारे ऐसे मामलात में उलझे हुए थे या मुलविस थे जो हमें से मावरा है और उनकी तफसीलात हम वक्त आने पर बताएंगे, तो क्या वैसे भी किसी चीज़ के इसके पर रोशनी डाल सकती है? सर, इन सब चीज़ों के प्रूफ मौजूद हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मेरे पास भी वो जो ऑफिस था ना, उसमें जो चाय बनाने वाला या मेरे को जो गाड़ी मिली हुई थी वो ड्राइवर से लेके वो तमाम चीज़ें जो है सरकार की होती हैं। तो उधर पाकिस्तान में या इस मुल्क में जो भी आपको पता है इंटेलिजेंस भी बड़ी पावरफुल है, तो जब आप ज़रा ज़रीन की आदत के ख़िलाफ़ मंफी प्रोपेगेंडा को उस अपने मनसब को इस्तेमाल करेंगे, तो अपना सर्वर साहब मैं भी हूँ, आप भी आपके ऑफिस में ही अगर आपके खिलाफ बगावत हो रही होगी तो सरेआम बैठ के सभी के साथ वो बातें होंगी, तो इसीलिए आप भी उस पर अपना थोड़ा सा अलर्ट होंगे। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि बातें जो हैं, बातें बहुत हैं, वो साथ बैठें तो सबसे अच्छी बात यही कुरान मजीद इसमें रख लेंगे। जो मेरे साथ भी बातें उन्होंने की हैं, ये वजाहत साहब भी मौजूद हैं, बाकी भी जो उनको जाके मिलते रहे हैं तमाम लोगों के सामने, हर बंदा सोचता था, मैं भी सोचता था कि यार इतनी इज्जत मिली, ये क्यों उसके साथ भी बात कर रहे हैं, उसके साथ भी बात। जब सरेआम आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर किस तरह की पावर मांग रहे थे? कोई इस तरह पावर तो नहीं मिलती। उन्होंने अपनी सीट को उन्होंने अपनी जो उस सीट को उस हैसियत को उन्होंने मिस यूज़ किया। साहब, आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि सरवर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने शायद दिया नहीं है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो क़यादत के ख़िलाफ़ बातें करते थे, ज़ाहिर है उनके पास रिपोर्टें सारी पहुँची होंगी और उनके इस्तीफ़े से पहले थोड़ी सी बाद में खबर भी चली कि उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया और कुछ देर में वो इस्तीफ़ा दे देंगे। पहला तो सवाल इसका आप जवाब नहीं देना। दूसरी बात यह है कि जो अदालती निज़ाम की आपने बड़ी अच्छी बात की है, उसके विक्टिम मैं भी हूँ, इरशाद कुरैशी साहब भी, और भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं कि बहुत सारे लोग सिसक कर मर जाते हैं घरों में और उनको इंसाफ नहीं मिलता। मुझे ये नहीं बात समझ आ रही, आप भी पाकिस्तान में इतने काम करके आए हैं, कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि जो कि आपकी या हमारी क़यादत को ये समझ नहीं आ रही कि वो अदालती निज़ाम में क्यों ऐसी तब्दीलियाँ नहीं ला सकते कि जो भी कोई केस है वो जल्दी हल हो जाए। मैं ख़ुद भी आपको बताया इसका शिकार हूँ कि जज जो है वो ये कह देता है जी मैं फ़लाँ केस का जो है ना मैंने
फैसला सुनाना है, मैंने कर लिया फैसला लेकिन सुनाना है, वो फैसला 3-3 साल ही सुनाता है, उसकी डेटें मिलती जाती हैं। कोई वकील मर जाता है, उसका रिश्तेदार मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, 6-6 महीने की डेटें पड़ती हैं। तो अगर हुक्मरान ही ये काम नहीं कर सकते, ये अदालती निज़ाम में तब्दीलियाँ, तो फिर ऊपर से कोई फरिश्ते तो नहीं आएंगे। अगर आप लोग भी इस तरह जिनकी मीटिंग्स होती हैं अपने कायदीन के साथ जो मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है, अगर आप ये लोगों की आवाज़ आप ही नहीं पहुंचा सकते कि अदालती निज़ाम में कुछ खुदारा तब्दीलियाँ कर दो, लोग एक तो लोग वैसे कत्ल होते हैं, लोग सिसक के मरते हैं, तो वो भी तो जिम्मेदारी हुक्मरानों के ऊपर याद होती है, लोग इंसाफ ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। प्लीज़ मैं गुलाम सैन साहब आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि आपने जो इस्तीफे के बारे में बात की है कि लिया गया है या दिया गया है, इसके ऊपर वक्त आने पर जो अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो अपना स्पोक्समैन है वही बात करेंगे इसके ऊपर। आपकी इन्फॉर्मेशन मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं देना चाह रहा, मैं तो ओवरसीज कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उस पर ही रहना चाह रहा हूँ। तो अदालती जो निज़ाम है उसके भी उसको चेंज करने के लिए पाकिस्तान में जो कवानीन में जो कवानीन हैं, जो आइन है, उसमें अगर हमें मैं यही तमाम प्लेटफार्म पे अपनी पार्टी के भी पिछले दिनों और पार्टी एक ओवरसीज़ के एजेंडे पे कॉन्फ्रेंस भी उसके ऊपर भी उसमें भी यही बात की, जब हम अपने ग्रोह में अलग-अलग ग्रोह बना के कोई लेफ़्ट को जा रहा है, कोई राइट को जा रहा है, हम एक पेज पे ये भूल के अपना ये मुस्लिम लीग नून है या PTI है या मुशर्रफ के लोग हैं या ये पीपल्स पार्टी है, ये सब कुछ भूल के जब हम एक प्रपोज़ल बना के तो उसके ऊपर जिद्दोजहद नहीं करेंगे अपने मसाइल के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आपके जो असल जो बैरियर है उनको हटाने में हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे जैसे कारकुन की अगर रसाई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारी हुकूमत है, तो मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ कि आप जैसे जो टैलेंट जो है मौजूद है, आप जैसे जो साथी मेरे साथ, आप मेरे साथ मेरी ताकत बन के अगर इनके हल के लिए हम तमाम लोग इकट्ठे हों और प्राइम मिनिस्टर साहब जब इधर आएँ हम उनके ऊपर दबाव डालें अपने मसाइल के लिए। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मेरे भी आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम्स हैं, सारी ज़िंदगी तो मैंने भी इधर नहीं रहना, तो मुझे भी आज ही ये फिक्र है कि कल मेरे बाद मेरे बच्चे कहीं पाकिस्तान से बिल्कुल ही कट ऑफ ना हो जाएं, इधर की ना होके रह जाएं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि कानून के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, अदालत के अंदर जो प्रॉब्लम, तो हम उसी बात की तो निशानदेही कर रहे हैं जो पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कह चुके हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक खुसूसी अदालत का क़याम कर दें जो कम से कम 5 तारीखों के ऊपर ही फैसला तो दें, ताकि इधर से लोग जो जाते हैं उनके पास ना ही इतना टाइम है, वो ना ही उनको मुकदमे इतने लंबे सालों साल मुकदमों की अपना, तो वो प्रॉब्लम की वजह से वो लैंड माफिया के लोगों को फ़ायदा उस कानून की वजह से जा रहा है। तो उसके लिए हमें सबको मिलके आप मीडिया के लोगों की आवाज़ जो है वो बड़ी अपना ताकत के ऐवानों में पहुंचती है, तो वो बड़ा अच्छा साबित हो सकता है हमारे लिए। सर शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं सर, टाइम अभी कितना हुआ है सर? दो ये जेरी वीज़ा ये सारी ये तमाम बातों पर हम बात कर रहे हैं। वैसे की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एयरलाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जुबैर गुल के अकेले उनको बात करने का वो शायद वो चीज़ें नहीं, लेकिन अगर हम सब मिलके एक ताकत बन के बात और लग भी यही रहा है कि वो PTI में शायद जाने का कुछ फैसला करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई वो हो गया फैसला किसी के कहने पे उन्होंने ये इस वक्त हुकूमत को छोड़ा, क्या उनकी जमात में किसी के इशारे किसी के कहने पे जा रहे हैं? शायद मैंने वही बात की है ना कि ये लंदन प्लान का एक हिस्सा है। लंदन प्लान की चीज़ थी, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ और भी चेहरे सामने आएंगे, आप वक्त का इंतजार करें, और भी चेहरे सामने आएंगे, उनको ये आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे 2 सवाल हैं, एक मेरा ज़ाती हैसियत में और एक इज्तिमाई हैसियत से। अभी आपने इल्ज़ाम लगाया है जुडिशरी में, कब्ज़ा माफिया को आप कहते हैं कि कब्ज़ा माफिया इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है वो कमज़ोर है। अवान साहब ने भी यही कहा है,
کہ जुडिशरी कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर जो हैं वो तो ये कहते हैं कि नहीं जुडिशरी बड़ी सही है। इमरान खान का यही तो रोना है, वो कहता है जुडिशरी को सही करो, जुडिशरी गलत है, लेकिन आपके लीडर ये कहते हैं लीडरान जो बात करते हैं ना वो टॉप लेवल की जुडिशरी देखते हैं। आपको मेरे मसाइल जो है ना वो लो लेवल की जो जुडिशरी प्रॉब्लम्स उधर हैं। नहीं जुडिशरी तो लोअर लेवल पे हो या अपर लेवल पे, जुडिशरी। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने 3 बंदों के नाम यहाँ मौजूद हैं गिनवाए हैं कि मैंने इनके लिए ये कुछ किया है वो कुछ किया है। नहीं मैं कह रहा हूं इनके थ्रू केसेस आए हैं, उनको चलिए इनके थ्रू केसेस आए हैं। मेरा डायरेक्ट केस था, मेरे छोटे भाई की बीवी पाकिस्तान गई है, एयरपोर्ट पे वो लुट गई और मैंने आपको रजू किया। उस वक्त आप टास्क फोर्स से चेयरमैन थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बताएंगे क्या है ये? हमने उनसे रब्ता किया था, लेकिन आपने जो इल्ज़ामात लगाए थे माजरत के साथ, वो जो पुलिस की इंक्वायरी थी, वो रिपोर्ट आई थी, वो जुडिशरी और आपने जो जेवरात बताए थे वो आर्टिफिशियल थे। मैं उसके बाद क्या करता? शॉर्ट सवाल के खाना लग गया। मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं कि आर्टिफिशियल, लेकिन अगर पुलिस की रिपोर्ट तो यही आएगी कि कुछ भी नहीं है। जुबैर साहब सवाल ये है कि मैं भी आपको पता कब्जा माफिया का विक्टिम हूँ आपकी तरह। मैंने गवर्नर खालिद मकबूल साहब से कहा था 6 साल पहले कि नादरा जो है वो पाकिस्तान का जो लैंड रिकॉर्ड है, नादरा ने ये कहा कि हम 6 मंथ्स के अंदर पूरे पाकिस्तान का लैंड रिकॉर्ड जो है वो उसको कंप्यूटराइज करके दे सकते हैं। ये 6 साल पुरानी बात है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर देते हैं, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसको, क्योंकि अगर आप 90% केसेस जो हैं वो सिर्फ कंप्यूटराइज करने से ही हल हो सकते हैं। ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दूसरे जो आपकी जो कॉन्फ्रेंस की जो टोन है वो बड़ी सरवर साहब के लिए काफ़ी एंग्री या गुस्से में है अब इस वक्त लगता है, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि आपके जो कायदीन हैं और जो पीपल्स पार्टी के कायदीन हैं उनकी यहाँ पे अरबों रुपए की जायदादें हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके सारा कुछ मौजूद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये नमाजें कुछ बख्शवाते जो है ना वो रोज़े गले पड़ते हैं। तो अगर कोई मिल बैठ के कोई बातचीत हो सकती है, अगर वो सरवर साहब ने गुस्से में कोई ऐसी बात कह भी दी है और तो उसको आप क्योंकि ओवरऑल होता ही है कि जब मैं इंटरनेशनल चैनल पे किसी पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे फेस करना पड़ता है अपनी ये सारी चीज़ों का। जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नर थे या चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में 60,000 मर्डर्स हुए हैं पंजाब के अंदर, जो सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में है। तो SHO जो है वो आपका DIG की बात नहीं मानता, मेरा एक्सपीरियंस है इस पर। आपकी जो लोअर जुडिशरी है वो भी मैं मानता हूँ। तो भाई जो काम करने वाले हैं उसको करें। आपने भी इधर रहना है, हमने भी इधर रहना। तो ज़रा गवर्नर साहब के टोन थोड़ी सी अगर बेहतर रखेंगे तो वो आपको आगे जाके फ़ायदा होगा उसका। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर गवर्नर साहब भी खुद समझदार हैं तो गवर्नर साहब भी तारीफ अपना ना करने से अगर ये तो नहीं इधर जायदाद अगर वो मेरा ख्याल आपकी तरह के लिए मैंने इधर की गवर्नमेंट में आप लोगों का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। वो हिस्ट्री हो चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इधर जिनकी भी जायदाद है वो टैक्स पेड हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के ऊपर कोई ऐसे ही अपना खुद क्या मैं शॉर्ट सवाल रोटी लगी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया गया और क्या वजह मैंने शुरू में ये बात कही है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मैंने ऑफिस किया, तो मैंने उस हवाले से ये खुद ही मैंने महसूस किया। क्या वजह है? इस्लामाबाद, लंदन, ग्लासगो से खौफजदा हो गए। मेरा ख्याल है कि मुझे जहाँ सा पता है कल से जब मैंने अपनी मीडिया के आप लोगों को जब टेक्स्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो गवर्नर साहब के हलकों में जो एक दहशत थी उसका मुझे पता है, मुझे फ़ोन आए। तो पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान के ये हमारी खुद की
बेवकूफ़ी हम समझ लें कि हम ये सोचें कि हमसे कोई उधर में हुकूमत वाला कोई कर सकते हैं। गवर्नर साहब जब गवर्नर थे उस वक्त नहीं कोई ऐसी अपना तो ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बात है। जुबैर साहब मैं एक जुबैर साहब गुजारिश है कि जुबैर साहब मैं गुजारिश ये करना, जब आपने इनविटेशन दिया था आपको ये कहना चाहिए था कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेने। आप प्लीज़ आप बराए मेहरबानी हमारा क्वेश्चन लें अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खामोशी आपसे गुजारिश था, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी मोहतरम नसीम सिद्दीकी मेरे सीनियर जो कलीग हैं उनके एक सवाल पे क्योंकि उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स को आपके ओवरसीज कमिश्नर जो पंजाब के हैं उन्होंने सख्ती से जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। आप ये बताइए कि आपकी ये स्माइल है इसकी एक तो वजह क्या है, और दूसरी बात ये कि अगर आपकी अच्छा मैं एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी ये सवाल आपकी ये जो आप इसको अगर गैर संजीदा लेते हैं तो आपके साथी नासिर भट्ट साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से बकौल कमिश्नर जो अफजाल भट्टी साहब वो हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि मेरे साथ मुस्लिम लीग नून बरतानिया साथ है, नासिर भट्ट साहब साथ है। तो मुझे ये बताएं कि किस हैसियत से इन्होंने जो है वो इनका साथ दिया है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या टास्क फोर्स इंतहाई नाकाम तरीन थी जिसको ओवरसीज कमीशन ने जो है वो कमिश्नर साहब ने जो है वो रद्द कर दिया है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ओवरसीज पंजाब का जो अपना कमीशन बना है वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है। वो ओवरसीज, मैं भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, वो हमारे मसाइल के हल के लिए बना है। आप उसमें नीयत देखें कि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज साहब, उन्होंने अगर वो कमीशन बनाया उनके विजन को आप देखें, अगर उसको कोई मिस यूज़ करेगा तो वो आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा। तो तंजीम का या कुछ उनके साथ को किसी किस्म की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो नासिर भट्ट हो या जुबैर गुल हो या मेरी सारी, हम तमाम हमारी ड्यूटी जो है अपनी पार्टी के विजन को हम डिलीवर करते हैं। हम तो पार्टी वर्कर हैं, उसके लिए मादर हैं। तो जब कमीशन में कोई ऐसी जिम्मेदारी होगी तो हम उसके भी जवाबदेह होंगे। और उन्होंने जो बात की है टास्क फोर्स की है जो भी, तो आप देखते हैं उन्होंने कहा ये झूठा है। जब पंजाब हुकूमत थी तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब भी मेरे साथ बैठ के जंग फोरम भी उन्होंने किया उसी टॉपिक के ऊपर। और जो लोग उधर प्रॉब्लम थी उन्होंने भी उधर आके सवालात किए। और ये साहब का गवर्नर भी उस पैनल में मौजूद थे, लॉर्ड नजीर साहब भी मौजूद थे। अगर वो झूठा होता तो झूठा मुझे भी साहब आप ऐसा करें वीनस टीवी पे एक घंटे का प्रोग्राम क्योंकि मैं क्वेश्चन करने का लेकिन आपने ले लिया दो लोगों का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो इसलिए थोड़ा सा बोलना हमारा भी जरूरी हो गया। एक तो ये कि जो आपका टास्क फोर्स था या जो आपका ऑफिस था उसका सर्वे किया वो आप मेरे साथ ही गए थे, तो ऑफिस आए थे। हाँ जी सर बिल्कुल, तो आप देना सर मैं अगर साहब के सामने नहीं बोल सकता। टीवी पे चले जाइएगा आप, मैं जाऊँगा। बात ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुज़िश्ता जो 5 साल में सीएम साहब ने जो उनके इलम में वाक़या किया, जो ज्यादती हुई किसी के साथ, चाहे वो आपके थ्रू गई या किसी और के थ्रू गई, उस पर फौरी एक्शन हुआ। आज भी वैसे ही सुन लेना मेरी, उस पर फौरी एक्शन हुआ। आईकॉन वैली वाला एक जो बड़ा वो, मुझे ये भी पता कि नून लीग का एक एमएनए इन्वॉल्व था, मैं आपको वही कह रहा हूँ, एक एमपी इन्वॉल्व था उसी एरिया का। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसके बावजूद उस जगह पर 6 दफ़ा कब्जा हुआ, 6 दफ़ा छुड़वाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। और वो डीआईजी भी जो सस्पेंड हुआ वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी इसके खिलाफ कार्रवाई की वजह से हुआ। लेकिन ये क्या वजह है कि जो वाक़या उनके इल्म में आए फिर कार्रवाई हो, पूरा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो कि सीएम तो हर जगह नहीं जा सकता। मेरी चले कौन थी, आप तक थी, उनकी तक थी, वो मामला हो गया। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बने कि आम पाकिस्तानी में, जैसे अवान साहब है, इनका बड़ी देर मामला रहा, ये बेचारे अपनी मेरा ख्याल है जान पे खेल के कब्जा वापस लिया, वो भी सीएम ने ही आर्डर किया। लेकिन इतना देर वहाँ पे हमला भी हुआ है, मतलब बहुत लेट हुआ। शायद रईस साहब के घर का मामला, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सीएम के इन्वॉल्व हुए बगैर, उनके इल्म में आए बगैर। बिल्कुल, मैं आपको यही बता दूं कि कमीशन पावरफुल या टास्क फोर्स या एडवाइजरी कमेटी पावरफुल तो बन सकती है,
जहाँ पर आपका अदालत का निज़ाम बीच में आएगा, उधर आपकी हुकूमत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया का लॉ है। तो इसीलिए वो जो माफिया के वो क्रिमिनल्स लोग हैं वो आपके उस सिस्टम को मिसयूज कर रहे हैं। एक और भी बात यह आई है कि एजेंसी के पास रिपोर्ट है कि मुबैना तौर पर गवर्नर साहब का एक बेटा भी कब्जों में इन्वॉल्व था। उसने कोई जेल में टिकट फैक्ट्री भी खरीदी है, कोई केसेस उसके बारे में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आज भी जो पंजाब है, क्या ऐसी भी बात है आप इलम में है? क्योंकि ओवरसीज से वो फैक्ट्री जेल में नहीं, वो तलागंग में है, लेकिन वो आने वाले वक्तों के लिए वो मटीरियल हमारे पास मौजूद है। ये कब्जा है या क्या, इन चीज़ों के बाद आने वाले क्या ऐसी बात है कि उनका बेटा कोई नफीस कब्जों के केसेस में इन्वॉल्व था? ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है इंटेलिजेंस वो बड़ी आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता इस बात का, आपको इस बात का नहीं पता कि वो उनका बेटा इन्वॉल्व है, आपको इस बात का नहीं पता कि जो क्रिमिनल्स का आपने जो It's not a debate. End of the story. That's what. Thank you. मैं किसी की जात के बारे में कल सुना एक बात ज़ुबैर गुल साहब शॉर्ट क्वेश्चन आप हेलो मेरा क्वेश्चन आपने पहले